Sir, I feel Jyotiraditya Scindia is very articulate. I appreciate his performances, his style of reply, everything. But sir, I am surprised to see Tata Group has taken lease against 18,000 crores of rupees. That has not been mentioned in a budget speech. Why? Sir, when we board on the aircraft, Ratan Tata's 25 seconds message is being floated amongst the passengers. He is asking for the cooperation of all persons. Sir, I tell one thing. There may be a feeling I am telling against Ratan Tata, not that. We are in favor. Ratan Tata has been leased out. I support it. Mamata Banerjee has supported it. But with one or two conditions, please see that nobody loses their jobs. किसी को कोई नौकरी से मत हटाइए. और सेकेंडली, हमारे बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम से अब पूरा राज्य सरकार को, मुझको और अधीर चौधरी को हाथ जोड़ करके आपका ड्यूटी छोड़ देना, ये मत करिए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब तो आपका बीजेपी पार्टी भी आज बहुत ऊपर में उठाया. हम लोग खुश है क्योंकि वो हमारे बंगाल के हैं. तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पर एयरपोर्ट लेके आप कुछ तो करिए, जो सारे देशवासी आपको अभिवादन करेंगे. और इनको साथ हमारे बंगाल में जो छोटा छोटा एयरपोर्ट का बात, चाहे वो अंडाल हो, चाहे मल्ला हो, चाहे कुछ बिहार हो, इसको बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा अलॉटमेंट कीजिए. सर, व्हाट इज माय फीलिंग इन माय लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 50 years in politics? Eastern region of India is the worst sufferer of regional imbalances after independence. ये बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, उड़ीसा हो, त्रिपुरा हो, हर स्टेट्स. इसीलिए बंगाल का इतना सारे देश का बारे में यह चर्चा हो गया. और बंगाल को चर्चा हुआ क्या, मैं और अधीर एक साथ हो जाए और उनको लिए कुछ जमीन निकाला दिया जाए. आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर दिस बजट. And I want to hear from Jyotiraditya that how much and what was the settlement and how Ratan Tata agreed to take the airways lease, and for which how much money this government had to pay to give their dues. After clearances of dues, more than 91,000 crores of rupees. After that only Ratan Tata agreed to take it up. I appreciate Ratan Tata's attitude. Let him carry the airway in a bigger way. We have our support. But let government must not hide the truth. In a long 90-minute speech, this is my request to Jyotiraditya. Thank you. Thank you very much, Speaker, sir. दोबारा चर्चा नहीं होगी, sir. The demands for grants, it is being discussed here after privatizing Air India. I fully appreciate the articulation of Jyotiraditya Scindia, our learned friend. I do appreciate. But the focal point to be discussed and responded was regarding the privatization of Air India. Nothing is mentioned. It is quite unfortunate. Sir, I have raised so many issues regarding the Air India employees, because the employees who are entitled to have the service up to 58 years, after 1 year Tata take over, they have to retire. So what is the fate of this Air India retired employees? As far as the medical benefit scheme, sir, they are entitled to have the medical benefit scheme even after the retirement. So whether this medical benefit scheme and all other welfare schemes will be available to the Air India employees, these are the pertinent questions which we have put. Unfortunately, nothing has been answered. So kindly respond to these questions also. Thank you. So yesterday I was raising the airfare in Middle East passengers. The peak season, airlines companies raising the fare in a big way. So common passenger could not afford, especially the Middle East. So Honorable Minister is not replied that. Sir, I thank the Minister. He's clarified that the airports are being only leased out and not disinvested. But I'd like to know, the state governments have given the land to the airport authorities for free. So when you're leasing it out, what happens to the state government's share?
So I just want a clarification on that. Thank माननीय मंत्री जी, ऐसा है कि एक विषय पर 8 घंटे चर्चा हुई है। आप कोई क्लियरिफिकेशन लेना है तो आप मंत्री जी से ले लेना बाद में। नो, अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसदों ने और हमारे वरिष्ठ सांसदों ने जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वो एयर इंडिया का मुद्दा है। जिसका भाषण ले हुआ सर, उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया। देगा ना, जवाब आएगा ना। मैं जो अभी मुद्दे उठे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे सुदीप दा ने कहा और प्रेमचंद जी ने कहा, और इसे सदन के पटल पे भी मैं रखना चाहता था। मैं घड़ी देख रहा था कि लंबा समय चल रहा है, और लेकिन जरूर इस पर विस्तृत तरीके से मैं अपने पॉइंट्स को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। मैं समाप्त करूं। एयर इंडिया, अध्यक्ष महोदय, देश का नवरत्न था। निजी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई, इसकी राष्ट्रीयकरण की गई, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई साल इसे सफलतापूर्वक चलाया गया था। जो आज एयर इंडिया की स्थिति हुई है, जो सुदीप दा ने वर्णन किया और प्रेमचंद जी ने बड़े विस्तृत तरीके से अपने चर्चा में और कट मोशंस में चिंता भी जताई है। यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, यह हमें समझने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा समय लूंगा अध्यक्ष महोदय। 2005-6 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ की मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग की खरीदवाने का मसौदा पे हस्ताक्षर किया गया, और 43 एयरक्राफ्ट एयरबस से। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपए मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। कारण ध्यान है लोगों को, लेकिन ये आप समझिए कि 2005 के पहले 2005 के पहले, अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी। मैं 8 घंटे कल सुन रहा था, कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए। 2005 के पहले जो, देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, 55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदी जाती हैं, और भाग एक कि उस 111 एयरक्राफ्ट में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती है, ये क्यों किया? और 5 एयरक्राफ्ट B300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। लो, ये और कर दिया। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, नहीं तो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो, और उसके बाद केवल ये नहीं, लेकिन दोनों कंपनीज का मर्जर करते हो। तो वही नहीं बोला। दोनों कंपनियों की कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग, उनकी इंप्लॉइज की रिटेंशन प्रोग्राम अलग,
उन दोनों कंपनीज को आप मर्ज करते हो तो जो दो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी 2005 में, जिस साल मर्जर किया गया उस साल से 3,300 करोड़ का लॉस बनाने की शुरुआत की गई। विषय अब समझ लो आप। और हर वर्ष 2007-8 से अध्यक्ष महोदय, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने और दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। 2007-8 से 2020-21 तक हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ का लॉस, 85,000 करोड़ रुपए का लॉस कंबाइंड मर्जर एयर इंडिया का। Acquisition of 111 aircraft, return, sale of 5 B300 aircraft, 777 B300, 15 in excess, merger of two companies with totally two different cultures, two different visions, two different employment retention programs, and you result in 20 करोड़ का लॉस प्रतिदिन, 7,500 का लॉस। अब इसके आगे सुनिए अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन किया गया, जो लिबरलाइजेशन आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं तो मैं चुप था। आपने पूछा, आपने ही मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आपने ही मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो बैठ गया था। बोल ही नहीं रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, लिबरलाइजेशन ऑफ बायलैटरल्स, आप सुनिए, 2004-5 में जो लिबरलाइजेशन की गई बायलैटरल्स की, जो भारतीय कैरियर्स थे, जो बायलैटरल्स 51 मिलियन की बायलैटरल्स थी, उनको बढ़ाकर 51 मिलियन बायलैटरल्स, मतलब जितनी क्षमता सीट्स की दी जाती हैं विदेशी एयरलाइंस को यहां आने के लिए और हमारे एयरलाइंस को वहां जाने के लिए, उसको बढ़ाकर 180 मिलियन किया गया और खाड़ी देशों में 100 से 200% बढ़ाया गया, साउथ ईस्टर्न नेशंस को 200% बढ़ाया गया और यूरोपियन नेशंस को 400% बढ़ाया गया, जबकि भारतीय कैरियर्स के पास वो क्षमता नहीं थी। तो इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय, क्या पोजीशन हुआ एयरलाइंस की जब ये स्थिति हुई जो दा पूछ रहे थे मुझसे? 14 साल के लॉसेस 85,000 करोड़, भारत सरकार की इक्विटी की इन्फ्यूजन 54,000 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 करोड़, 190,000 करोड़ तो ये हो गया, और वर्तमान का नेट डेट था 66,000 करोड़, तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई थी। और ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा, ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का विनिवेश किया गया। जो प्रेमचंद्रन जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और दास साहब ने उठाया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में विस्तृत रूप से लिखा गया है। पहला कंडीशन कि 1 साल के लिए कोई भी हमारे कर्मचारी को फायर नहीं किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद अगर किसी को रिटेंशन से हमें हटाना है तो केवल वीआरएस स्कीम के आधार पर किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। जहां तक मेडिकल की बात प्रेमचंद्र जी ने कहा, मेडिकल फैसिलिटीज रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉइज की जो भारत सरकार का व्यय होता था वही सीजीएचएस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर किया जाएगा। ये हम लोगों का संकल्प है। और इसी के साथ हमारी विचारधारा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा भी उत्पन्न हो
ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को और इस एयरलाइन को भी दोबारा स्थापित किया जाए और भारत सरकार और भारत की जनता की पैसे और उनकी आमदनी की रक्षा किया जाए।